ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May, our enemy. Alhamdulillah. Good. آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز بھارتی بزدلانہ حملے کا دن کی روشنی میں بھرپور جواب. کاری ضربیں. پاکستانی عوام اور مساجد پر حملے میں ملوث تمام بھارتی بیسز شاہینوں کا ٹارگٹ. پاکستان نے ہلوارہ ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا. ادم پور بیس کو پاکستانی جانبازوں نے نشان عبرت بنا دیا. بھٹنڈا اور پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ خاک کا ڈھیر. اخنور ایویشن بیس چولوں کی نظر. افواج پاکستان سورت گڑھ، مامون، اخنور، جموں، سرسا اور برنالہ کے ایئر بیسز اور فیلڈز کو بھی تباہ کر چکی ہے. بھارت بھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب. متعدد پوسٹیں مکمل تباہ. پاک فوج نے فقیہ سیکٹر میں بھارتی پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں. بیاس کے علاقے میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ. بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اور مقبوضہ کشمیر میں اڑی سپلائی ڈپو ملیا میٹ. بہادر مسلح افواج کا بزدل دشمن کو دندان شکن جواب. بھارت میں کئی جگہوں پر پاکستان کے بھرپور حملے جاری. الحمدللہ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مربوط اور پرزور جواب دیا. بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا. بھارت کی پیدر پہ جارحیت کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا. تاہم بھارتی انکار کے بعد آپریشن بنیان مرصوص کے تحت پاکستان نے جواباً صرف ان بھارتی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے حملے کیے گئے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اہم سیاسی رہنماؤں سے رابطہ. بلاول بھٹو زرداری، بیرسٹر گوہر، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم الرحمان، خالد حسین مکسی اور چودھری صالح حسین کو اعتماد میں لیا. سیاسی قیادت کا افواج پاکستان کے تدبر، حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش. نازک مرحلے پر مکمل تعاون اور قومی یکجہتی کی یقین دہانی. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب. صورتحال پر غور اور اہم فیصلوں کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا. اہلی دیوال نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. تباہی کے ڈھیر. بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی جی ٹاپ تباہ. بھارتی افواج کا سپلائی ڈپو اڑا دیا گیا. جانبازوں نے دشمن کی کمین گاہوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا. پاکستانیوں کے خلاف حملے کے تمام پوائنٹ ٹارگٹ پر. بھارت بھر میں اندھیروں کے سائے. سائبر اٹیک کے ذریعے 70% بجلی کے گرڈ ناکارہ بنا دیے گئے. مودی کا بھارت اندھیروں میں غرق. کہا تھا آزمانا مت. بھائی لوگوں کا پورا وار کے اندر بیٹھے ہیں. پٹھان کوٹ سے بول رہے ہیں, وار کے اندر بیٹھے ہیں. بہت بری حالت ہو رکھی ہے یار. بہت خطرناک کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے نا باہر کی آواز تو آ رہی ہے. خطرناک. او بھائی صاحب یار بڑی گندی. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا منہ توڑ جواب جاری. بھارت میں پٹھان کوٹ کے شہری کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. پٹھان کوٹ میں بہت برے حالات ہیں. حملہ ہوا ہے اور شدید دھماکے ہو رہے ہیں. بھارتی شہری.
बहादुर मुसल्लह अफवाज का मरबूत ऑपरेशन, तमाम अहम बेसिस को चुन चुन कर निशाना बनाया। तबाही की वीडियोस ने भारतीय जुनून का गुब्बारा फाड़ दिया। गोदी मीडिया सीख पा, फतह 1 मिसाइल की तबाहकारियों की वीडियो दुनिया भर के मीडिया दिखाने लगे। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पथेली टॉप के भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। पथेली टॉप गन पोजीशन से बनाई जाने वाली वीडियो में रात भर से दिन तक भारतीय पोस्टों की तबाही देखी जा सकती है। बहादुर अफवाज ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान जज्बा शहादत से सरशार। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पूरे जंगी अज़्म के साथ जारी। अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारत में सन्नाटे छा गए। पाक फौज के जवान जज्बा शहादत से सरशार। पाकिस्तान के ड्रोन्स नई दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात पहुंच गए। परवाजें जारी, किसी में रोकने की सकत नहीं। मोदी की राजधानी पर लर्जा तारी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैक कर ली गई। हैक वेबसाइट्स कंपनियों में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड शामिल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट्स भी नाकारा। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया गया। डाटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस रात की तारीकी में भारतीय बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब। भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी टारगेटेड ऑपरेशन का एतराफ। पठानकोट एयरबेस, पुंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला किया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट जाम कर दी। भारत को अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो रहा। पाक फजाइया ने इंडिया टुडे की वेबसाइट भी नाकारा बना दी। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। कराची बंदरगाह पर कब्जे की बड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत। इसहाक डार ने गुज़श्ता रात भारतीय हमलों के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान अमन का दाई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी की। अगर भारत रुका तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत ने दोबारा कुछ किया तो अगला जवाब भी देंगे। भारत में जरा सी भी अक्ल हुई और जंग बंदी की तो हम भी रुक जाएंगे। अमेरिका से करीबी राब्ते में हैं नायब वजीर आजम इसहाक डार का बयान। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का राबता। भारतीय हमलों और उनके जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई से जनूबी एशिया में पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर चीन का इजहार तशवीश। अफ्रीकैन को अमन और इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। मामला कशीदगी की बजाय सियासी तस्फिये से हल करें। चीन पाकिस्तान भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा। इंडिया ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। हमारी तमाम हमदर्दी सिखों के साथ है। मेजॉरिटी ऑफ दीज मिसाइल्स जो कि पीएफ एयर बेसिस पे मारे गए और दागे गए, उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया। जो चंद एक स्नीक इन कर सके, उनकी वजह से भी पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइंग एसेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बच चुके हैं। इंडियन पंजाब में जो हमले किए उसके फौरन बाद जो मिसाइल्स और ड्रोन अटैक ब्रदरली अफगानिस्तान कंट्री पे लॉन्च किए गए थे, इससे ये मालूम होता है कि देयर इज़ ए लार्जर सिनिस्टर प्लान, ताकि खित्ते में बड़ी तेज़ी के साथ अदम तवाज़न पैदा किया जाए और इसको जंग की तरफ धकेला जाए। भारत को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो फ्रस्ट्रेशन है हर हमले की नाकामी के बाद, इसको हम जल्द ही मजीद कंपाउंड करेंगे। भारतीय पागलपन इंतहा को छूने लगा। खित्ता तबाही के दहाने पर बदहवास भारत के अपने ही शहरियों पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल हमले। आदमपुर से दागे गए 5 भारतीय मिसाइलों का हदफ सिखों का मरकज अमृतसर बना। पाकिस्तान में नूर खान बेस, मुरीद बेस और शोरकोट बेस की जानिब दागे गए मिसाइल नाकाम बना दिए गए। पाक फजाइये के तमाम असासे महफूज। भारत के अफगानिस्तान में भी मिसाइल हमले। पाकिस्तान के मरबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। भारत ने खित्ते को खतरनाक जंग की तरफ धकेल दिया। दुश्मन के बुज़दिलाना इक़दामात से मरऊब नहीं होंगे। भारत को भरपूर जवाब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। है मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर पैगाम, अल्लाहु अकबर। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो वो कर्ज रखते थे चांद पर, वो हिसाब आज चुका दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। भारत का शर्मनाक अमल, अपने ही सिख शहरियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाना भारत की अक़लियतों के खिलाफ गहरी साजिश। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में सिख बरादरी के साथ खड़ा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के मुताबिक अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को ललकारा था। पहले कहा था कि आगाज तुम करोगे, आगे फैसला हम करेंगे। बारहा कहा था कि भारतीय जाहरियत पर जवाब जरूर आएगा और फिर भरपूर आएगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। अफवाज पाकिस्तान पर अवाम को फख्र और नाज है। पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की टीवी चैनल से गुफ्तगू।
پاکستان کا جوابی وار جاری، پاکستانی فتح میزائل کی لانچ، شہید بچے پاکستانی بچوں کے نام پر پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو بھولا ہے نہ بھولے گا۔ یہ پاکستانی معصوم بچے بھارت کی پاکستان میں جارحیت میں شہید کیے گئے تھے۔ پاکستان پاک فوج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پاک فوج ہم لوگ پاک فوج کی اس کارروائی سے بالکل مطمئن ہیں۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ شروعات انہوں نے کی ہے اور ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پاکستان کا جھنڈا دہلی میں لے رہیں گے۔ مودی سن لو مودی، سارے مسلمان جہاد کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ہوں گے، بعد میں ہمارے پاک فوج ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، دشمن کے خلاف پوری قوم متحد، مسلح افواج کے شانہ بشانہ۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ، گجرات، حیدرآباد، سکھر، مردان، کوئٹہ اور پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد کے نعرے، دشمن کو گھر میں گھس کر ماریں گے۔ ان کی اگلی نسلیں بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گی۔ عوامی جوش و جذبہ عروج پر۔ معروف مفکر دین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے قرآن پاک کی روشنی میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بنیانم مرصوص یعنی آہنی دیوار سے تشبیہ دیا۔ یہی لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ اسی تناظر میں اس آپریشن کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا ہے۔ 552 hours. Wait for our response. بھارت کی جارحیت کا پاکستان کی جانب سے جوابی وار، پاکستان کی مسلح افواج جذبہ حب الوطنی اور شہادت سے لبریز۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کا دشمن کو بھارت کو کرارا جواب۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے خون کے آخری قطرے تک آہنی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ بھارتی بزدلانہ حملے کا دن کی روشنی میں بھرپور جواب، پاک فوج کا آپریشن بنیانم مرصوص سے جاری۔ پاکستان کی فضائی حدود کل دن 12 بجے تک ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند رہے گی، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی۔ اور بھارتی اسٹاک مارکیٹ کو بڑا دھچکا، جنگی جنون میں مبتلا بھارتی حکومت کو $83 بلین کا نقصان۔ بھارتی مارکیٹوں میں بے چینی، بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں 13 میں سے 12 بڑے شعبے تنزلے کا شکار۔ پاکستان کے مزید جوابی اقدامات کسی طویل اور مکمل جنگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر تحفظات کا اظہار۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ نے جانی، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا مختصر سے وقفے کے بعد۔
भारत का जंगी जुनून, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाक फजाइया के दिलेर पायलट्स और बर्क रफ्तार तैयारे JF-17 ने बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी जंगजुओं ने JF-17 को बहादुरी और निडर अंदाज में उड़ाकर दुनिया को सहर में मुब्तला कर दिया। दुनिया पाक फजाइया के जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मोतरिफ। JF-17 तवील फासले तक उड़ान भरने की सलाहियत का हामिल जंगी तैयारा है। मल्टी रोल टैंकर्स ट्रांसपोर्ट MRTT तैयारे से एक ही बाप में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे F-17 की खासियत है। JF-17 की ये खासियत कि इसे फजा में ही दोबारा फ्यूल भरा जा सकता है। पाकिस्तान का जंगी जुनून, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाले पाकिस्तानी JF-17 थंडर। अब हमारा जुनून दुश्मन देखेगा। भारत ने हम पर जारहियत मुसल्लत की, हम पर जुनून आया और हमने अपनी तारीख दोहराई। हमने बहादुरी और शुजाअत के कारनामे सरंजाम तारीख में भी दिए और आज भी हम मुंह तोड़ भारत को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाले पाकिस्तान JF-17 थंडर। आपको आगाह करेंगे, गुज़श्ता शब शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय हमला किया गया। भारतीय बुज़दिलाना हमले के नतीजे में शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया है। एयरपोर्ट सन 1993 में तामीर किया गया था। इसका नाम शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहियान के नाम पर रखा गया। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से इंतहाई शर्मनाक अमल जारी है। अपडेट करेंगे आपको, भारतीय बुज़दिलाना हमले के नतीजे में शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता शब शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय हमला किया गया। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। ये एयरपोर्ट सन 1993 में तामीर किया गया था और इसका नाम शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहियान के नाम पर रखा गया था। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। पूरी कौम को इस कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आज़म ने मुल्क की मौजूदा कशीदा सूरत हाल और भारत की हालिया जारहियत के जवाब में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर अहम सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता किया। वजीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, जमीयत उलमा इस्लाम फै के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद हुसैन मक्सी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मरबूत और पुरजोर जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिनमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की पैदर पे जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ताहम भारतीय इनकार के बाद ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के तहत पाकिस्तान ने जवाबन सिर्फ उन भारतीय अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमले किए गए थे। सियासी क़यादत ने अफ़वाज पाकिस्तान के तदब्बुर, हौसले और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर आज़म को इस नाजुक मरहले पर मुकम्मल ताउन और कौमी यकजहती की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने तमाम कायदीन के गैर मुबहिम साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हम पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म के मुल्क की सियासी क़यादत से राब्ते एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान का पैगाम देते हैं जो हर दाखिली और खारिजी चैलेंज का सामना यकजहती से करने को तैयार है। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय हमलों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल पर मबनी जवाब और दीगर इक़दामात की तारीफ़ की। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया।
भारत ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में अपने फजाई अड्डों की तबाही की फुटेजेस मंजर आम पर आने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप आयद कर दी है। वजारत दिफा ने कहा है कि इंडिया के तमाम मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अफराद से कहा है कि वो किसी भी नुकसान की बराह रास्त कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से गुरेज करें। इंडियन वजारत दिफा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस तरह की हसास या माखज़ पर मबनी मालूमात का इंकशाफ हो सकता है जो भारतीय कौमी मफादात के मनाफी हो। इंडियन वजारत दिफा के मुताबिक केबल टेलीविजन नेटवर्क्स तरमीमी रूल्स 2021 के मुताबिक मीडिया को सिर्फ वो चीज़ दिखाने की इजाज़त होगी जो उन्हें हुकाम की जानिब से कहा जाए। भारत की मुसलसल जाहरियत से बिलाखिर पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। फतवन मिसाइल ने अहदाफ के परखच्चे ही नहीं दुश्मन के होश भी उड़ा दिए। पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद पर हमले में मुलव्वस तमाम भारतीय बेसिस शाहीनों का निशाना बने। उधमपुर बेस निशाने इबरत बना दिया गया। भटिंडा और पठानकोट एयरफील्ड खाक का ढेर बनकर रह गए। अखनूर एविएशन बेस शोलों की नजर, जबकि ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट भी तबाह कर दी गई। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और मकबूजा कश्मीर में उड़ी सप्लाई डिपो भी पाकिस्तान के रद्दे अमल की हैबत से न बच सका। भारत में कई जगहों पर पाकिस्तान के भरपूर जवाबी हमले ताहाल जारी। मजीद तफसील डॉक्टर मलिक उमर से। इंतहा पसंद भारत ने बिलाखिर खित्ते के अमन को दाव पे लगा दिया है। मुसलसल जारयाना इकदामात से पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पामाल किया जाता रहा तो बिलाखिर गरूर का सर खाक में मिलाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान ने रद्द अमल में अलसुब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया तो भारत की दिफाई हिकमत अमली किसी काम न आ सकी। पाक अफवाज तमाम मतलूबा अहदाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में हासिल करने में कामयाब रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th May at the time of Fajr, पाकिस्तान की जानिब से फतवन मिसाइल दागे गए तो दुश्मन मुल्क में कोहराम बरपा हो गया। उधमपुर बेस को पाकिस्तानी जानबाजों ने निशाने इबरत बना दिया। बटिंडा और पठानकोट एयरफील्ड खाक का ढेर होके रह गए। अखनूर एविएशन बेस भी शोलों की नजर हो गया। ब्यास के इलाके में बरामूज स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया गया। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हुए भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और मकबूजा कश्मीर में उड़ी सप्लाई डिपो तबाह कर दिए, जबकि बतीली टॉप की भारतीय पोस्टों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों के तमाम पॉइंट्स को टारगेट किया गया। भारत पाकिस्तान के साइबर हमलों को भी न झेल सका। बिजली की ग्रिड नाकारा बनाए तो 70% भारत यकलख्त अंधेरों में डूब गया। पाक फिजाओं में ड्रोन्स भेजने वाले भारत के अपने शहर में आज पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज रहा। नई दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में ड्रोन्स की 3 घंटों तक परवाजें जारी रहीं और किसी में रोकने की सकत न हो सकी। पाक अफवाज ने राजवाड़ी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पूरे जंगी जाम से जारी है। अफवाज पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जा रहा है। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारत का जंगी जुनून, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाक फजाइया के दलेर पायलट्स और बर्क रफ्तार तैयारे JF-17 ने बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारत को एक और तमांचा, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी जंगजुओं ने JF-17 को बहादुरी और निडर अंदाज में उड़ाकर दुनिया को सहर में मुब्तला कर दिया। भारतीय हुक्मरान और भारतीय सियासी क़यादत भी हैरान और परेशान हो गई कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दुनिया पाक फजाइया के जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मोतरिफ। JF-17 तवील फासले तक उड़ान भरने की सलाहियत का हामिल जंगी तैयारा, मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट,
MRDT तैयारे से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे F-17 की खासियत और JF-17 थंडर पाकिस्तान की शान। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। परखच्चे उड़ा दिए गए हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जानिब से भारत के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के, और दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। खास तौर पर भारत के इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में हैबत और लर्जा तारी है। भारत के साथ वो हो गया है जो भारत तवक्को नहीं रख रहा था। भारत का जंगी जुनून, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाक फजाइया के दिलेर पायलट्स और बर्फ रफ्तार तैयारे। JF-17 ने बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मलिया मेट कर दिया। परखच्चे उड़ा दिए गए हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के, जिस पर भारत बढ़के मार रहा था, और यकीनन इस वक्त इस एयर डिफेंस सिस्टम के टुकड़े चुनने में मसरूफ होंगी भारतीय फोर्सेज। पाकिस्तानी जंगजुओं ने JF-17 को बहादुरी और निडर अंदाज में उड़ाकर दुनिया को सहर में मुब्तला कर दिया। ये हैं हम पाकिस्तानी, हम कर सकते हैं और हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। हम पर मुसल्लत की गई है जारहियत और हम दे रहे हैं जवाब। भारत हो रहा है बेताब। राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाकिस्तानी फजाइया के दलेर पायलट्स और बर्क रफ्तार तैयारे। JF-17 ने बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए, और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। जंगी तारीख में बिलाशुबा ये एक संगे मील है। भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी JF-17 थंडर से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी जंगजुओं ने JF-17 को बहादुरी और निडर अंदाज में उड़ाकर दुनिया भर को हैरान और परेशान कर दिया। नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाकिस्तानी फजाइया के दलेर पायलट्स और बर्फ रफ्तार तैयारे। JF-17 ने बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए। पाकिस्तान की JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी जंगजुओं ने JF-17 को बहादुरी और निडर अंदाज में उड़ाकर दुनिया को सहर में मुब्तला कर दिया। दुनिया पाक फजाइया के जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मोतरफ। JF-17 तवील फासले तक उड़ान भरने की सलाहियत का हामिल जंगी तैयारा, मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT तैयारे से एक ही हॉप में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग JF-17 की खासियत। आपको आगाह कर रहे हैं, राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाकिस्तानी फजाइया के दलेर पायलट्स और बर्फ रफ्तार तैयारे JF-17 ने बुज़दिल दुश्मन के दिल दहला दिए हैं। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। कंट्रोलर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन राना शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। राना शहजाद, बिलाशुबा जंगी तारीख में पाकिस्तानी शाहीनों ने आज नए कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं, और पाकिस्तान के गुरूर JF-17 थंडर ने S-400 जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है भारत का, उसको तबाह कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है। क्या अपडेट्स हैं? जी मुनाज़र, ये जो हम पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की खुसूसी वीडियो दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का फख्र है और ये तारीख साज मनाजर हैं जब पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर को खाक में बनाते हुए जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया का जदीद तरीन माना जाता है, भारत ने ये रूस से हासिल किया है S-400 सिस्टम, उसको तबाह किया है। JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाकर भारत के अंदर घुसकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाले JF-17 थंडर की ये तारीखी वीडियो है जो मंजर आम पर आई है। भारतीय S-4 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान ने भारत का ये जदीद एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके नाम निहाद भारतीय दिफाई निज़ाम और खोखले दावों को ज़मीन बोस कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो तबाह किया जाने वाला भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, इसकी जो मालियत है $1.5 अरब मालियत की है। तो ये पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फजाइया ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दी हैं। जी मुनाज़र, बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। बिलाशुबा हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। आज हर पाकिस्तानी को अपने इन शाहीनों पर नाज है। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के भरपूर शाना बशाना है। हर पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के दिफा के लिए इस वक्त पुरअज़्म और पुरजोश है। भारत का जंगी जुनून, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई,
पाकिस्तान का तहम्मुल जो है भारत ने पूरी तरह आजमाया और फिर आज मुंह की खाई। राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाले पाकिस्तानी JF-17 थंडर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का जदीद तरीन S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। बाकी खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आलमी महाज पर एक और नाकामी का सामना। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त की मंजूरी दे दी है। IMF के जारी करदा एलामिया के बारे में मजीद जानते हैं फहद अजीज की इस रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत पहली जायजा रिपोर्ट को मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से IMF ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। प्रोग्राम पर अमल दरामद से पाकिस्तान की मुकामी और बैरूनी मौशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। एलामिया के मुताबिक इस कर्ज से पाकिस्तान कुदरती आफात से निमटने के मंसूबे बनाएगा और पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत फौरी $1 अरब जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IMF की जानिब से $1 अरब की किस्त की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडे एक बार फिर नाकामी से दो चार हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत यकतरफा जारियत से हमारी मुल्की तरक्की से तवज्जो हटाने की मजमूम साजिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी इदारों ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को जिम्मेदाराना अंदाज से मुस्तरद किया है। गुज़िश्ता 14 माह में बेहतर मौशी इशारिये हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों का मजहर हैं। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी और इसे तवील मुद्दती बहाली की राह पर गामजन करने में मदद मिलेगी। हुकूमत टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों के हवाले से तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हजाज मुक़द्दस में मौजूद पाकिस्तानियों ने पहले फ़र्ज उम्रे की अदायगी के बाद बैतुल्लाह में मुल्क और कौम की सलामती और पाक फौज के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। तफसील जानते हैं मक्का में मौजूद अपने नुमाइंदे बिलाल शेख से। हमने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं जी पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत में, पाक आर्मी की हिफाजत में और उनको हर महाज पे कामयाबी पाए। मेरे पास एक इंडियन मुसलमान बैठे थे, मैंने उनको भी कहा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इंडिया के लिए भी दुआ करें, इंडिया के मुसलमानों के लिए, और मैंने खुद भी दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी दुआएं खाना काबा पे भी की और रियाजुल जन्ना में भी की, मस्जिद नबवी में जी बहुत दुआएं की पाकिस्तान के लिए। आज हतीम ने बहुत दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती दे और दुश्मनों से मुकाबला करने की ताकत दे, हिम्मत दे। तो हम हरम में दुआएं कर रहे हैं, हमें अपना मुल्क की सलामती चाहिए और मुल्क होगा तो हम लोगों की सलामती। जवाब इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं। तो हमने तो दुआई मांग ली कि जवाब देगा। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेकाम नसीब फरमाए। चले जो होंगे शहादत का शाम की कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में लिया होगा, अली तुम्हारी पाकिस्तान का जवाबी वार जारी। पाकिस्तानी फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है, ना ही भूलेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे।
पाकिस्तान के इन नन्हे शहीदों को सलाम। पाकिस्तान का जवाबी वार जारी। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल की लॉन्च। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है, ना ही भूलेगा। चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं और गिन गिन कर हम बदले ले रहे हैं। हम भारत को छठी का दूध याद दिला रहे हैं और भारत से एक एक जुर्म का हिसाब लेंगे। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। पाकिस्तान के इन नन्हे शोहदा को सलाम। पाकिस्तान का जवाबी वार जारी। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल की लॉन्च। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। पाकिस्तान के जवाबी वार जारी हैं। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल की लॉन्च। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तान का जवाबी वार जारी है। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल की लॉन्च। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है और ना ही भूलेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। पाकिस्तान का भरपूर जवाबी वार जारी है और भारत को धूल चटाई जा रही है। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल की लॉन्च इन शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर की गई। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है, ना ही भूलेगा और इनसे गिन गिन कर बदले लेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। पाकिस्तान का भारत को जवाबी वार जारी है। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल की लॉन्च इन शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर की गई। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। इन मासूम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का जवाबी वार जारी है। बार बार कहा था आजमाना मत। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। चीन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फ्रीकैन अमन और इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में तहम्मुल से काम लें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सूरत हाल पर गहरी नज़र है। दोनों ममालिक कशीदगी के बजाय मामला सियासी तस्फिये से हल करें। तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिनसे कशीदगी बढ़े। चीन ने पाक भारत तनाज़ हल करने में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म कराने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाक फौज की जानिब से भारत को भरपूर जवाब देने के बाद पेशावर के शहरी भी बेहद पुरजोश हैं। उनका कहना था कि वो अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मतलब जंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जंग नहीं है, ये एक जुल्म है और जुल्म के खिलाफ जो मेरे बहादुर फौज ने किया है उसकी उम्मीद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सब्र किया, लेकिन उन्होंने सब्र को हमारी कमज़ोरी जाना और जो इनके मुंह पे आज थप्पड़ मारा गया है मेरी फौज की तरफ से, इंशाअल्लाह इनकी 100 नस्लें भी याद रहेंगी कि वाकई किस कौम से वास्ता पड़ा था। हम लोग देखो लड़ाई से नहीं डरते, हमारे लिए शहादत है, मौत से हम नहीं डरते। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत है आगे। इंडिया ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है उसका हमने भरपूर जवाब दिया है और हम इंडिया के कसाई मोदी को बताना चाहते हैं गुजरात के कि वो अगर ऐसा कुछ भी करेगा तो हमारी पाक फौज जो है वो एनी टाइम हमले के लिए तैयार है। मेरा बहादुर फौज तुम्हारे के लिए तैयार है। मैं छोटा जवान, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे के लिए काफी है। जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने मोदी को कहते ना जवाब दिया है उसकी गवर्नमेंट को, तो उनको लग पता जाएगा कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मोदी भी सारा परेशान है कि पाकिस्तान ने भी हमला किया। पाकिस्तान के ड्रोन जो है मुंबई में सारे चक्कर परवाजे लगा कर दिए हैं और हम बहुत खुश है। हम खुश है कि पाकिस्तान लड़ेंगे, उनके साथ लड़ाई करेगा। हम भी तैयार है, सारे पठान तैयार है। पाकिस्तानी फौज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने अपना हक अदा किया है। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। ये तो हमारे पाक फौज जिंदाबाद और हमारे जो है ना हमारे फहर है, काबिल फहर है। ख्वाहिश है कि हम सब निकलें बॉर्डर की तरफ जाएं और आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हों और हम सुपर सालार को ये कहना चाहते हैं कि हम सब तैयार हैं, सिर्फ आपकी इजाज़त और इशारा चाहिए। हम ऐसा जवाब देंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। हम इंडिया के साथ जंग के लिए तैयार हैं, हम पठान हैं, हम डरने वाले नहीं है। सरगोदा के अवाम पुरजोश। पाक फौज के शाना बशाना, दुश्मन के हर वार के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार।
आवाम के तासुरात जानिए उन्हीं की जुबानी। जब उन्होंने कुछ किया है तो अब जवाब आया है, अब रोते क्यों हैं? अब वो देखें, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जवाब आएगा, अभी तो हमने शुरू किया है। जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों फौजियों ने नौजवानों ने हमला बैक किया है ना, हम उस पर बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह पाक हमारी फौज को हिम्मत दे। उनको पता चल जाए कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है और ये एक ताकतवर मुल्क है और ये मुसलमानों का मुल्क है जो मौत से बिल्कुल नहीं डरते हैं। पाकिस्तान जो है बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान के साथ जो है खेल ना करें, आप खिलवाड़ ना करें पाकिस्तान के साथ। ये इंडिया को मैसेज है हमारा। पाक फौज के साथ हैं, इन्होंने रात को बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इंडिया का जो जवाब दिया है, इंडिया समझता था कि हम सोए रह जाएंगे, लेकिन हमने जो जवाब दिया है वो भरपूर जवाब दिया है। हम सारी अवाम मुत्तहिद है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, हम हैं आहनी दीवार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, भारत के स्याह चेहरे पर पाकिस्तान के तमांचे जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई जारहियत का पाकिस्तान भरपूर और बेहतरीन जवाब दे रहा है, जो तारीख में लिखा जाएगा। और मोदी यकीनन इस वक्त सोच रहा होगा कि मैं कहां फंस गया हूं। पाकिस्तान की जानिब से इतनी भारतीय चेक पोस्टें तबाह की गई हैं कि सफेद परचम लहराकर पाकिस्तान से गोया अमन की भीख मांगी जा रही हो। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। और भारतीय जारहियत का जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने बेहतरीन जवाब दिया है, इस पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के शहरी भी खुशी मनाते हुए मिठाइयां तकसीम करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हाफिज मोहम्मद अली आबिद फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हाफिज मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई पर कैसा जोशो खरोश पाया जाता है फैसलाबाद के शहरियों में? जी, पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से बुनियान मरसूस ऑपरेशन लॉन्च करते हुए इंडिया को उसकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया है और फौजी तनसीबात की ईंट से ईंट बजा दी है कि ये घुस कर मारा है। आज इस पर पाकिस्तानी अवाम जो है, खासतौर पे फैसलाबाद के शहरी बहुत ही मसरूर नजर आते हैं। पाक फौज ने जिस तरीके से अपने शहीद बच्चों का बदला लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए उनकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी है और मोदी को यह बता दिया है कि तुम्हारी ये सहूनी और ये हिंदुआना सोच जो है इसका तोड़ कर दिया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी पाक फौज ने जिस अंदाज में भारत और हिंदुस्तान पे हमला किया है, उन्होंने ये बता दिया है कि ये हैदर कर्रार के जानशीन है। ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा लगा के हमला करने वाले हैं। बचा बचा आप जान तैयार है, मुरली दा पटाके पा देंगे, कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान नू तबाही ला देंगे असी इंडिया दी। जी बिल्कुल, आपने देखा फैसलाबाद के शहरी कितने पुरजोश हैं और भारत के को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उस पर बहुत ही खुश नजर आते हैं। जी शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली आबिद। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हमारी फौज ने जज्बा शहादत के साथ हिंदुस्तान को भरपूर जवाब देकर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम लिया कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होती, मगर भारत की तवातुर के साथ, तसलसल के साथ जो जारहियत थी, बिलाखिर उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया था। दुश्मन को ये दिखाना, ये समझाना, ये सबक सिखाना कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, कोई हमें एक दफ़ा ललकारेगा तो हम उसे 10 दफ़ा ललकारेंगे और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये भारत को भी समझ आ जाएगी और पूरी दुनिया देख लेगी कि हम अपनी कौम के इत्तेहाद से, अपनी पाक फौज की ताकत से और अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह हम फाते रहेंगे। मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान जो है कलमा की बुनियाद पे बना है। आप लोग हमें शुरू से ही नापसंद करें, लेकिन हमने हमेशा आपको नाक चबवाए हैं, जिसका रिजल्ट रात तुमने देख लिया है और अभी भी देखोगे। इस सूरत में जहाद फर्ज है। हम सारी कौम बुनियानुल मरसूद एक सीसा पिलाई दीवार की तरह
इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ए दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी हैं सफारा। और ननकाना साहिब के शहरियों का कहना है कि भारत हमेशा याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा था जो जज्बा ईमान से सरशार और मौत से मोहब्बत करने वाली है। हमने दिन के अजारे में उनको ऐसे सबक सिखाया कि उनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। मैं कहता हूं कि खुदारा इस कौम को न ललकारो, हम अमन के ख्वाह हैं, हमारी कमजोरी ना समझी जाए। ठट्टा के अवाम पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर खुश, इंशाअल्लाह पाक फौज इंडिया के हर शहर पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग। जी हसन, आगाह कीजिएगा। ये आखिरकार पाकिस्तान ने इंडिया के ताबड़तोड़ और बुज़दिलाना हमलों का जवाब दे दिया है और पाक फौज बहुत तेज़ी से जो है वो सरहदों के ऊपर अपनी कार्रवाई कर रही है और इंडिया बौखलाहट का शिकार हो गया है। इंडिया को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी पावर है और पाकिस्तान जो इंडिया का ऐसा शर करेगा कि इंडिया की फ़ौजी जो हैं वो वर्दियाँ अपनी उतार के भागेंगे। हमारी फ़ौज बहुत बहादुर है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा और उनको मुंह तोड़ शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। हमारी पाक फ़ौज बहुत बहादुर है और हम पाक फ़ौज के साथ हैं। मोदी सरकार सुन ले कि हम इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद हम इंडिया में हम नाश्ता करेंगे इंशाअल्लाह। उनका कहना ये है कि पाक फौज इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम जो है वो इंडिया के एक एक शहर के अंदर लहराएगी। जी मिर्जा हसन बेग। नाज़रीन, भारत को मुंह की खाना पड़ गई पाक फौज की जबरदस्त कार्रवाई, सखर के अवाम भी पुरजोश। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक इमरान। जी इमरान, आगाह कीजिए। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी के बाद पाक फौज की जानिब से जिस भरपूर अंदाज में भारत को दंदान शिकन जवाब दिया गया है, सखर की अवाम ने इस इकदाम को खासा सराहा है। लड़ेंगे हिंदुस्तान से, मुंडी को खत्म करना है हमको। पाकिस्तानी अवाम फौज के साथ खड़ी है, शाना बिशाना उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके बाद हमें ये खुशी हुई कि इनके तमाम ठिकाने तबाह कर दिए गए और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला हमारी फौज की बात करें। ऐसे अहदाफ को निशाना बनाइए, इनकी नस्लें याद रखें, सारे का सारा भारत लर्रज उठे और मुसलमानों का आलम इस्लाम का दिल खुश हो जाए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर ये साबित उनकी बुज़दिली और अपने नौजवानों की बहादुरी और शुजाअत को साबित कर दिया कि आइंदा अगर भारत ने हमला किया तो उनको इसी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। भी ऐसे ही जवाब दिया करेंगे। हम स्टूडेंट्स पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सजावल की आवाम का कहना है कि मुल्क की दिफा के लिए कौम अपनी पाक फौज के साथ है। हमारी फौज ने पहले अटैक में ही इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे मिर्जा कमर हसन बेग से। जी, भारत की जो जारियत कुछ गुज़िश्ता दिनों से जो जारी थी उसका आज पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है और ये जवाब ऐसा है कि इंडिया की नस्लें सदियों तक इसको याद करेंगी। पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ इनको जवाबी कार्रवाई करके इनके एयर फील्ड्स उड़ाई हैं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बना ही जो फ़िज़ाई हमले होते हैं उनको रोका जाए, उसको भी जो है पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने जो है निस्तो नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम होता है जो जहाज़ों के लिए होता है, जो गिराई जहाज़ों को जाता है, हमारे पाकिस्तान ने उनका वो डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। हमारा जान माल सब हमारे वतन अजीज़ पर कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंडिया जो है ना अपने आप खुद ये ड्रामा करके जो है ना वो हमदर्दी लेता है। वो रात के अंधेरे के टाइम में जो है ना पाकिस्तान में जो किया है उन्होंने पहल की है, तो आपने देखा क्या रिजल्ट निकली है। जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो है ना 6 तैयारे इंडिया के गिरा दिए। ये तो शुरुआत है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया ने अगर और भी कुछ हरकत की तो यकीनन हमारी पाक फौज के साथ हम खड़े हैं। तो यकीनन पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी पर खबरनामा मुकम्मल करते हुए न्यूज़ टीम के हमरा मनाज़िर हुसैन और उमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।